अच्छा, वो वाली लिंक भी गलत होगी ना, सेकंड वाली भी। कब क्या डेट डाल दिया उसमें? सर उसमें सर सर हम दिसंबर 23 भी है क्या? दिसंबर डाला। हाँ जी, सर उसमें भी सितंबर दिसंबर है, डाला है। उसमें भी दिसंबर है। दिसंबर। अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी वो भी दोबारा भेज दूंगा मैं, ठीक है। सायराम सर। सैराम सैराम। Let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sairam. So 18 people are there. Okay, all right. So today we are discussing with GST about GST, है ना? So we have to uh, understand how to record GST in the books of accounts. So one thing we discuss started introduction of GST, है ना? It's a goods and services tax, and why did uh, it is needed that we have discussed that earlier there were many indirect taxes, and to eliminate difficulty in tax accounting, it was necessary that we should have one common tax in place of many taxes. Second problem we discussed that there were two different sets of taxes for goods and services. So we started charging common tax for goods and services, that is GST, goods and services tax. Okay. So now what we were discussing that importance of GST I have explained to you. Now see the types of GST. Let us see the video first, then we will discuss it. It explains about the GST. Accounting entries under GST. Goods and Service Tax or GST has revolutionized taxation procedure. Tax evasion is prevented as citizens are voluntarily adhering to GST guidelines.
Since GST is paid timely, accounting entries need to be made accordingly. Let Let us us consider consider some some illustrations illustrations for for understanding understanding accounting accounting entries entries under under GST. GST. Let Let us us assume assume that that CGST CGST and and SGST. SGST. Okay, Sairam, before this I have to explain you, then you will understand this. So I have to share the board, whiteboard, and I need text. Where is the text? Whiteboard and text. Where is text? Text. Okay, there is text. Create new and let me share. Okay, create new and text. Let us share this text here. Okay. So GST, that is goods and services tax. Okay. Am I audible? Sairam. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sairam. Yes, sir. So now can call it types of GST, है ना? Types of GST. So there are three types of GST. Number A, CGST. What is the full form of CGST? Central Goods and Services Tax. Central Goods and Services Tax. Is it clear? CGST, that is Central Goods and Services Tax. ठीक है. Second one is SGST, that is State Goods and Services Tax. SGST. Is it clear? Sairam. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And third one is IGST, Interstate or integrated goods and services tax. Integrated goods and services tax. So there are three categories: CGST, SGST, and IGST. Okay. Now let us understand. There are two types of transactions. Number one, intra-state. Intra-state, that is movement or purchase and sales of goods within the same state. Now, is it clear? Movement or purchase and sales of goods within the same state. For example, a businessman from Pune purchases goods from a businessman
EXAMP, EXAMP, example. Businessman of Gwalior. Sairam, is this example clear? Yes, Sairam, sir. please respond. So, Yes, sir. the two cities, Guna and Gwalior, are in the same state, है ना? Sairam. So, if there is a exchange Yes, of, sir. है ना, exchange of goods and services within the same state, that is called intra-state transaction, है ना? Within the same state. In case of intra-state transaction, intra-state transaction, we charge two taxes, CGST and SGST. CGST and SGST. आपको दोनों लगेगा हमारा SGST, है ना? कौन कौन सा टैक्स लगेगा? CGST एंड SGST 50%, सॉरी, हाफ रेट कर दीजिए, हाफ रेट फॉर ईच, हाफ रेट फॉर ईच। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे सपोज करो, rate, as I said, rate of GST is different on different goods and services, है ना? It's not common for all goods and services. So whatever is the rate applicable on that goods or services, 50% will be the CGST and 50% will be the SGST, है ना? For example, rate of GST और GST मान लो, कॉमन तो बोलेंगे GST, है ना? Rate of GST is 12%. Rate of GST 12% on a particular product. Now, this is the rate of GST 12% in a particular product, means out of this 12%, what will happen? 6% will be CGST, 6% जाएगा CGST में, and 6% will go to the SGST. Are you understanding? अगर कुल टैक्स का रेट 12% है तो 50% है ना? CGST मतलब वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और SGST मतलब होता है कि दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट, है ना? वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आया आपको? तो जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसका 50% बढ़ जाएगा अगर सेम स्टेट के अंदर गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग हुआ तो। इट क्लियर साईराम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा है IGST, दूसरा ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जैसे इंदौर का कोई बिजनेसमैन परचेज करता है फ्रॉम नागपुर, मतलब क्या हो गया? इंदौर और नागपुर का मतलब क्या हुआ? इंदौर इन मध्य प्रदेश, ना, नागपुर एंड महाराष्ट्र। सो अलग अलग स्टेट, इफ टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन, तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा? IGST, ना? और फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट IGST में जाएगा, उसका हाफ हाफ नहीं बटेगा, ठीक है? 12% तो 12% IGST में जाएगा, वो शेयर नहीं होगा उसमें। IESH वो से डिवाइड नहीं होगा, इट विल बी फुली डेबिटेड और क्रेडिटेड टू IGST। समझ में आया इतना आपको? किसी को कंफ्यूजन तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक और वर्ड यूज करते हैं हम उसमें, इनपुट GST।
इनपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर मैंने कोई सामान परचेज किया तो मैं जीएसटी पे करूंगा, है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ठीक है, दैट विल बी इनपुट जीएसटी। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अभी समझ में आएगा बाद में आपको। ठीक है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, मतलब समझो जब मैंने सामान परचेज किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब मैंने सामान परचेज Yes, किया, sir. जब मैंने एक पेन परचेज किया 20 रुपए का, ठीक है, और उस पर 12% जीएसटी का रेट है, तो 20 रुपए पे 12 कितना हो गया? 12% कितना हो गया? 2 रुपीज 40 पैसा, है ना? तो मैंने 22 रुपीज 40 पैसा पे दिया, यानी 2 रुपीज 40 पैसा टैक्स दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इनपुट जीएसटी हो गया, है ना? तो मैं अब मैं इस पेन को सेल करूंगा, मैंने सेल किया 15 रुपए में, मैं भी कस्टमर से वही 12% जीएसटी, सॉरी 25 रुपए में सेल किया, 20 का खरीदा 25 में बेचा, 25 में बेचा, तो मैंने भी उसको 12% जीएसटी लिया, तो 25 का 12% कितना हो गया? 3 रुपए, है ना? तो 3 रुपए मैंने लिया और मैंने दिया कितना? 2 रुपए 40 पैसे। समझ में आ रहा है क्या आपको? सही राम? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या पहले आउटपुट समझ लो, फिर आपके पास समझ में आएगा। कितनी और है आउटपुट, इसको हटा दूं मैं, इससे और नीचे ले जाता हूँ, समझ में आ जाएगा कितना है। इट इज एन असेट, ये हमारी असेट होती है एक तरह से, है ना? क्या होती है? इट इज एन असेट, यानी इतने काम को क्रेडिट मिल गया, इतना हमने जीएसटी पे किया, दैट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज कलेक्टेड at the time of sale of goods and services. It is a liability as it is collected on behalf of government and it is to be deposited to government after setting of input GST. अब समझो, दो जीएसटी हो गए हमारे पास। अब ये सीजीएसटी नाम देंगे कि आईजीएसटी को छोड़ दो, अभी पहले तो सिंपल समझो, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ये समझ में आ रहा है? दो, सही राम? Yes, sir. तो इनपुट जीएसटी क्या होता है? हम पे करते हैं, वो कौन सा होता है? इनपुट जीएसटी होता है। जब हमने कोई सामान खरीदा तो हमने टैक्स दिया, तो क्या हो गया? वो इनपुट जीएसटी। ठीक है, और जब हम सामान बेचेंगे तो क्या करेंगे? कस्टमर से वो टैक्स लेंगे, जीएसटी लेंगे, कलेक्ट करेंगे।
तो वो कौन सा हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। सही राम, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ये हो गया। इज इट क्लियर साई राम? यस सर। Yes. अब मैं तो एग्जांपल क्या दे रहा था, ऐसे सपोज करो मिस्टर एक्स परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज, अब इसमें स्टेट जरूरी है ना, मिस्टर एक्स ऑफ नागपुर, या कुछ भी दे दो, कानपुर दे दो, नागपुर छोड़ दो, कानपुर परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम कपिल फर्नीचर हाउस क्या है, बनारस या वाराणसी, ये हो गया। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, अच्छा कैप्स लॉक ऑन है, उसकी प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आ रहा है आपको? यस ये दोनों कौन सी स्टेट के हैं? सर, यूपी एंड महाराष्ट्र। कानपुर महाराष्ट्र में है कि बनारस महाराष्ट्र में है? सर बनारस यूपी में। कौन सा? सर दोनों यूपी में है। सर दोनों यूपी में है। हाँ हाँ, दोनों यूपी में है, कानपुर भी यूपी में है और बनारस भी यूपी में है, ठीक है। तो अब इसने 1 लाख इसमें आगे लिखेंगे द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, 18% मान लो, चलो लग्जरी में आएगा तो 18%, नॉर्मल है तो हमारा प्रॉब्लम ही वो हमको दिया रहेगा ना, हमको याद करने की जरूरत नहीं किस पे कितना आता है। अगर आप प्रोफेशनल टैक्स लॉयर है या वो काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो हमको तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, कि किस प्रोडक्ट पे टैक्स रेट क्या है, दैट वी डोंट हैव टू क्रेम, है ना। तो इस पे सपोज कर लिया हमने कि टैक्स रेट हमारा 18% है, ठीक। आप देखो नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं हम इसके लिए, फर्नीचर परचेज करेंगे तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ ना। अच्छा फॉर कैश कर दिए, चलो बनारस फॉर कैश कर देते हैं इसको। डिलीट कहाँ गया भाई? और कैश कर देता हूँ इसको, और कैश, चलो अब आसान हो जाएगा आपको। तो एंट्री क्या हो गई, वैसे सिंपल एंट्री बोलेंगे तो अभी आप क्या करते हैं, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी तो हम एंट्री ये करते हैं, ये एंट्री होती है ना, समझ में आ रहा है सबको? सही राम? यस सर। यस सर। यस। अब देखो अभी क्या हमको जीएसटी भी आ गया इसमें, तो जीएसटी हमको देना है कि हमको मिल रहा है जीएसटी? तो हमने परचेज किया तो जीएसटी हम पे करेंगे कि मिलेगा जीएसटी हमको? सर पे करेंगे। पे करेंगे। पे करेंगे। विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, कौन सा लगेगा? क्या पता है विद इन द सेम स्टेट कौन सा लगेगा? सीजीएसटी है ना। सीजीएसटी तो हम करेंगे, ठीक है, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट होगा, क्या बोलेंगे इसको, इनपुट है ना, जब हम परचेज करते कौन सा होता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सर आप भी लिख रहे हैं, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है।
नहीं दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर बोर्ड सर, दिख रहा है दिख लेकिन साईराम, क्या अभी मैं दिख रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है? दिख रहा सर दिख है रहा है सर, दिख सर। रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अभी चेक करो अपना, थोड़ा नेट वगैरह चेक करो, कुछ प्रॉब्लम होता है ना। ये एंटी हो गई मेरे पास अभी। क्या हो गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर कितने का परचेज किया? फर्नीचर की वैल्यू देखो, प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। सर 1 लाख। 1 लाख। अब इसका रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 18% है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, विद इन द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन है तो कौन सा लगेगा? सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। और जो भी रेट होगा उसका हाफ हाफ बढ़ जाएगा, दोनों 50% बढ़ जाएगा। तो 1 लाख का 18% होगा वैसे टैक्स रेट, तो 9% हो जाएगा सीजीएसटी और 9% हो जाएगा एसजीएसटी, ठीक है। तो 9000 आ गया इसमें, 9% भी आएगा ना, 9000 आप करेंगे उसका। तो यस सर। 1 लाख का 9% इसमें आ गया और 9% इसमें आ गया एसजीएसटी में, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा दोनों मिला के दिखाए तो? 1,18,000 हम लोग पेमेंट करेंगे। 1,18,000। ये तो एंट्री हो गई हमारी दूसरी, ठीक। पहला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया आपको? ये सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगाई, समझ में आया? हाँ जी बोलिए। यस सर। 9,000 कहाँ हाँ से आया? हाँ, ये अच्छी बात है। देखो साईराम, ये यहाँ देखो फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है। हाँ वही बता रहा हूँ, फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है, समझ में आ रहा है? यस सर। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। गुड, 18%। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? विद इन इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? दो शब्द यूज करते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब दोनों बात, इंट्रा स्टेट है ना। इंट्रा स्टेट है तो दो टैक्स लगेंगे, कौन कौन से? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और एसजीएसटी। इतना पता है सबको? यस सर। ठीक है। अब जब भी ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, जो टैक्स की रेट है वो 50-50% आधी आधी बढ़ जाएगी दोनों में। चाहे तो अमाउंट बांट दो चाहे रेट बांट दो, बात एक ही है। तो 18% रेट है, ठीक है। 1 लाख का 18% निकालेंगे तो 18,000 आएगा। उसका हाफ ऑफ करेंगे तो 9,000 इसमें आएगा, 9,000 इसमें आएगा। एक तो तरीका ही हो गया। साईराम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। दूसरा क्या हो सकता है कि आप रेट को ही हाफ कर लो। 18% का हाफ कितना हो गया? 9%। तो 9% 1 लाख का इसमें आ गया और 1 लाख का 9% इसमें आ गया। तो कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। साईराम, यस सर आ इज इट गया। क्लियर और नॉट? यस सर आ गया। समझ में? और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, ठीक है। आपको डेट शीट मिल गई है ना एग्जाम की? साईराम, डेट शीट इज ऑलरेडी पोस्टेड, ठीक है। तो आपको एग्जाम दो पार्ट में होगा, एक तो होगा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। दो फॉर्मेट में एग्जाम होगा आपका। एमसीक्यू का गूगल फॉर्म आएगा, उस पर जितने क्वेश्चन 9, 10 जो भी हम डिसाइड करेंगे उतने क्वेश्चन आएंगे, और वो आपको उसका टाइम होगा 10-15, 10 मिनट, 12 मिनट, जो भी टाइम देंगे उसमें आपको उस टाइम में वो सबमिट करना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साईराम, यस सर। और सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, दैट क्वेश्चन पेपर विल बी फ्लोटेड, टाइम विल बी गिवन, यू हैव टू राइट द आंसर्स एंड within the stipulated time you have to उसको क्लिक लेना है और उसकी पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ व्हाट्सएप करना है हम लोग को। यू हैव टू गिव इट, सेंड इट बैक आफ्टर टेकिंग द फोटोग्राफ, मेकिंग द पीडीएफ, और पीडीएफ बना के हम लोग को भेजना है, ठीक है। समझ में आया? जैसे अभी आप मेरे पास व्हाट्सएप भेज रहे हो ना, बना के बच्चे भेजते सॉल्व करके, ऐसे ही आपको पीडीएफ बना के भेजना उसका। पीडीएफ में अभी चूंकि वो कैम स्कैनर चाइनीज ऐप है, तो एक दूसरा ऐप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस,
किसी को बताएंगे? सही राम। No, sir. No, sir. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस LENS, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने उस पर, अपलोड कर लीजिए, सॉरी क्या बोलेंगे, जो भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस LENS है, क्या LENS मुझे मालूम चला, LENS है, LENS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। तो सेम वही काम करता है जो आपका कैम स्कैनर करता है ना। इससे आप PDF बना सकते हैं, वर्ड फाइल कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं, सारे इसमें फीचर्स हैं। तो इसको आप अप्लाई करके चालू उस पर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके चालू कर यूज करना चालू करिए इसको, तो आपको प्रैक्टिस आ जाएगी जब एग्जाम चालू होगा तब तक। सही राम, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. will be splitted examination will be splitted into two parts। एक तो होगा आपका MCQ और one word answer format, है ना, that will be separate Google form, you have to reply within the given time। और दूसरा descriptive, that you have to attempt write the answers as soon as the question paper is loaded। You will be given the time like you are given in the examination, and you will be given the time by which you have to send it। After that this will not be submitted or accepted। So this way this examination will be conducted। ठीक है? Sir, exam का syllabus. हाँ जी, Sir, exam सही राम। syllabus. हाँ, सिलेबस बता दिया मैंने आपको अभी। हमने डिस्कस किया था ना अकाउंट में, क्या पढ़ा हमने अभी तक? फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सही राम, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा ना, सही राम। Yes, sir. फिर वो पढ़ा हमने वाउचर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, थ्योरी पढ़ी थी उसकी। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा अभी, बाकी कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं पूरे। अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़ दीजिए आप लोग, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़ के बाकी अभी तक जो जनरल लेजर और ये जनरल विद GST इतना आएगा आपके अकाउंट्स में। ठीक है, ये तो जनरल का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। जनरल विद GST का कुछ एक दो एंट्रियां होंगी, 4 एंट्रियां होंगी, एक क्वेश्चन होगा छोटा सा, तो इट्स ए पार्ट ऑफ जनरल, इट्स नॉट ए सेपरेट टॉपिक, इट्स ए पार्ट ऑफ जनरल, है ना। GST वाला भी उसी का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सही राम। Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन? ये आपके ऑफिशियल उस पर भी आएगा, ऑफिस से भी भेजेंगे उस पर आपके व्हाट्सएप पर, बट मैं बता रहा हूँ आपको अभी, है ना। जो सिलेबस मैंने दिया मुझे पता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ये सिलेबस होगा आपका इसका। ठीक है, और दूसरा BS में क्या होगा आपका? हाँ जी, सर मतलब ये फाइनल एग्जाम का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? अभी हमारे यहाँ आपको पता है, शायद आप 11th में पहली बार आए, तो क्या होता है 11th में पीरियोडिकल एग्जाम्स होते थे, आपको पता है ना, सबको पता होगा बच्चों को, पीरियोडिकल एग्जाम होते थे आपके। Yes, sir. तो 11th क्लास में 3 पीरियोडिकल होते थे, फर्स्ट पीरियोडिकल, सेकंड पीरियोडिकल, थर्ड पीरियोडिकल, ऐसे होता था, है ना। लेकिन पीरियोडिकल एग्जाम का कोई भी इफेक्ट हमारी फाइनल एग्जाम पर नहीं पड़ता था। फाइनल एग्जाम में जो एनुअल पेपर होता था उसमें जो परफॉर्म करते थे उसी के बेस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था, फाइनल रिजल्ट। तो अभी तो ये असेसमेंट है, मालूम चलेगी, आपको भी मालूम चलेगी कितना आ रहा है, हमको भी मालूम चल जाए कौन बच्चा कर पा रहा है, कौन बच्चा नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स को भी मालूम चल जाए, फीडबैक मिल जाए उनको कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज, अभी तक तो ऐसा सिस्टम था, आगे क्या होगा पता नहीं सकते। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या होगा इसका। जो पुराना सिस्टम था वो ये था कि ये केवल असेसमेंट होता था, इसका फाइनल एग्जाम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसका कोई परसेंटेज हम वहां नहीं लेते थे। इस बार क्या होगा कह नहीं सकते, अभी तो असेसमेंट ही है फिलहाल। तो अगर आगे चल के CBSE बोलता है कि जो पुराना असेसमेंट है उसी के बेस पर रेट करो या जो करो, तो कह नहीं सकते, अभी कुछ पता नहीं उसका, अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। समझ आपको? अभी तो असेसमेंट है, सो वी कैन नो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। दैट इन्फॉर्मेशन विल रीच टू द पेरेंट्स ऑल्सो, आपको भी समझ में आएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, फॉर दैट वी आर डूइंग दिस। ठीक है राम? ओके सर, थैंक यू। है ना, तो ये अभी स्टेटस इसका ये है। तो अभी तो आप तैयारी करो अपना, अगर आपको कोई डाउट है तो बीच में पूछ लो। अभी क्लासेस आपकी चल रही है ना, क्लास भी चलेंगी, उस दिन आपका वही बस पेपर होगा एक दिन, और बाकी क्लासेस सस्पेंड रहेंगे। जैसे मान लो आपका अकाउंट्स का पेपर होता है तो अकाउंट का ही पेपर होगा, 1.5 आवर टाइम होता है उसका, तो 1.5 आवर जैसे वहां देते थे पीरियोडिकल में, वैसे ही आपको 1.5 आवर यहाँ मिलेगा। विद इन दैट टाइम यू हैव टू सबमिट इट, वो आपको बता देंगे कितना टाइम है, कितना सबमिट करना है, दैट वी ऑल डिस्कस, है ना। तो ये सिस्टम है हमारा, तो दैट वी हैव टू डू। एनी डाउट टू एनीवन? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? No, sir.
अब बीएस का सिलेबस बता देता हूँ आपको, बात चल रही तो वो भी फाइनल कर लो। कितने चैप्टर हो गए हमारे? पहला हो गया है ना, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। दूसरा हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हो गया प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जितना हमने पढ़ा है वही सिलेबस है, उतना ही आएगा। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े छोड़े वो सिलेबस में नहीं है, दे आर नॉट इन द सिलेबस। ठीक है सर बैंकिंग सर्विसेज आएगा क्या? क्या चीज? सर बैंकिंग सर्विसेज। हाँ अरे बता तो रहा हूँ। ये तीसरा बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसके बाद का एक चैप्टर और आएगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, छोटा सा चैप्टर है इसके बाद का, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसमें दो ही टॉपिक है, ई बिजनेस या वो क्या बोलते हैं उसको, ई कॉमर्स। आपको समझ में आता है, बहुत सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं ई बैंकिंग में, वही है लगभग, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशन है, बहुत सारा टॉपिक है उसमें, तो वो उतना चैप्टर आएगा। तो बैंकिंग सर्विसेज एंड उसके बाद आपका इंश्योरेंस, दो आएगा सर्विसेज में, बैंक एंड इंश्योरेंस। और उसमें आएगा आपका एक चैप्टर हो रहा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद का चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इतना आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। साई राम, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। Okay, so time is over for this class. So we will meet again after 10-20 minutes. I am stopping sharing. We will continue with this topic. And I am coming back to the meet. I have come to the meet. Now you can leave. Again we will join. We will meet after some time. Sai Ram.